Jai Hind students, in this video I am going to make you understand about the meiosis. Where does it takes place? In the previous classes we have just finished the mitosis. If you have a clear concept of mitosis and its stages, then it will help to understand the stages of meiosis also. But first of all, we must be clear about where does this meiosis takes place and how which type of cell or daughter cell it's formed. Meiosis is a special type of cell division which only takes place in the gamete mother cell for the formation of gametes. meiosis जो है वो माइटोसिस से काफ़ी अलग है. माइटोसिस नॉर्मल किसी भी सेल में होता है एंड it helps the cell for the growth or division into two. No changes takes place while the division of mitosis, but meiosis is totally responsible for all the variations that is brought about by the process of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग शुरू पहले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं एंड वी नो डैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन. जब आपसे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर बताइए, देन यू ऑल से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व गैमीट फॉर्मेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग में फिर गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. These are the characters of sexual reproduction, and the sexual product of sexual reproduction shows genetic variation. Then when you all are reading the process of meiosis, then you must understand what are these terms and what is genetic variation, because this is the meiosis which is responsible for bringing the genetic variation in the gamete. Okay, first of all, what is gamete? Imagine this is our gamete forming cell, gamete mother cell, which has two sets of chromosome 2n. We are especially talking about my diploid organism. In the diploid organism, during the process of gametogenesis, meiosis takes place. ओके, माइटोसिस जो था वो यूनिवर्सल था, वो कहीं भी सेल को ग्रोथ कराने के लिए सिंपली इसी तरह का सेल बनाने के लिए माइटोसिस होता है. लेकिन मेयोसिस केवल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में उनके गैमेट्स को बनाने के लिए मेयोसिस होता है. meiosis only takes place in the gamete mother cell, means the cell which is going to form or which is participating or which is the mother that will form the gametes. So in sexual reproduction, in diploid organism and sexual reproduction, gamete formation takes place and both the gamete of both opposite sexes met, that is called as fertilization, and then zygote formation takes place. Means a diploid organism is 2n, then gamete formation by meiosis result in the formation of n gamete. What does it mean? It means that the diploid organism will form the gamete by the process of meiosis and it will have the half set of chromosome. So the second difference in meiosis and mitosis is that the mitosis was resulting the set of cells which has same number of chromosomes, but in meiosis the chromosomes in the daughter cell is reduced to half, that is n. यहाँ मदर सेल में 2n था, अब n हो गया. Okay, the third difference is that in mitosis the number of daughter cell forming was two daughter cells were formed by mitosis.
I am making you understand the difference first because it is very important so that you can understand the process. आप प्रोसेस को समझ पाइएगा कि क्यों मियोसिस इतना कॉम्प्लिकेटेड है और माइटोसिस थोड़ा इजी है. तो पहले हमें माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस समझना होगा. Mitosis results into two daughter cell that was similar to the parent cell, mother cell, and there was no difference in the set of chromosome, no variations were bringing. But meiosis results in formation of four daughter cells, which and all the four daughter cells have the half set of chromosome. पूरे डॉटर सेल्स को जो मदर सेल थी उससे बिल्कुल हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, दैट इज एन. ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमिट फॉर्मेशन, और कहीं भी गैमिट फॉर्मेशन हुआ है इट मीन्स इट विल गो फॉर फर्टिलाइजेशन, मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो गैमिट फॉर्मेशन, इमेजिन कीजिए दिस गैमिट इज फॉर्म्ड इन फीमेल एंड अगेन देयर इज अ मेल, उसमें भी गैमिटोजेनेसिस हो रहा है एंड गैमिटोजेनेसिस से एन सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल हैविंग n number of chromosome means single set of chromosome. and sexual reproduction का एक पार्ट ये भी है कि गैमिट फॉर्मेशन के बाद दोनों गैमिट मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, एंड अगेन देयर इज n that will come for female and n that will come from male in the form of ovum and pollen grain in the case of plant, or in the form of ovum or sperm in the case of animals. And then then the both again the 2n n and n will combine and 2n is established. So this process helps to maintain the specificity of that species, because species is also known by its set of chromosome. अगर कोई स्पीसीज है तो वो अपने सेट ऑफ क्रोमोसोम उसका कांस्टेंट है, उससे वो उसका कैरेक्टर है. सो अगर मियोसिस नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाए तो मियोसिस नहीं होगा तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, मीन्स दोनों गैमेट्स 2n और 2n मिलेंगे और मिलने के बाद यहाँ सेट हो जाएगा 4n, और ये अपनी स्पेसिफिसिटी जो स्पीसीज का क्रोमोसोमल कैरेक्टर है वो लॉस कर जाएगा. हर वक्त क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है. गैमिट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाइगोट एंड स्पीसीज का फॉर्मेशन, अगेन जाइगोट का फॉर्मेशन, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन, न्यू स्पीसीज का न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा. और वो ऑफस्प्रिंग जो आगे अब ये डेवलप करेगा, देन इट विल गो फॉर माइटोसिस. क्योंकि माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल के नंबर को बढ़ाता है. ये जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद ये जो इम्ब्रियो बनेगा और इम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा, देन इट विल ओनली गो फॉर माइटोसिस. देन अब इस ये ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस की मियोसिस अब कब होगा? when it will start forming gamete. जब ये गैमिट बनाना स्टार्ट होगा तब ये फिर मियोसिस इसके सेल में होगा. and all the cells that are not participating in the formation of gamete, or all the cells except the gamete are called somatic cells. Okay, and gamete forming cells are gamete mother cell. Except gamete mother cells and gametes, all are called as somatic cells. The organisms, eye cell, plants, in the case of plant, leaf cell, stem cell, root cell, branches cells, all the cells except that cell that is participating in the form of gametes or the gamete cell, because that cell is particularly known as pollen mother cell or egg mother cell or sperm mother cell, or means this is known as a mother cell, and it will go for gametogenesis, gamete formation. So now here this concept is clear, why meiosis is important and what does meiosis results. How many cells? Meiosis results in the formation of 4 cells, means one cell will form 4 cells and all the cells will have half the number of chromosome.
दिस इज स्पेशली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। मीन्स अगर गैमिट बनेगा तो आपके एक मदर सेल से 4 गैमिट्स बनेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा सेम सेट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ दैट स्पीसीज एंड दस देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द क्रोमोजोमल कैरेक्टर इन दैट स्पीसीज। नाउ come to the second character of sexual reproduction, that is genetic variation। सेकेंड कैरेक्टर है आपका रिप्रोडक्शन का, वो है जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन जो है उसमें भी ये भी कारण है जो कि मियोसिस के कारण ही होता है। ये जेनेटिक वेरिएशन भी मियोसिस में कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनमें आपका जेनेटिक वेरिएशन आता है। अब हम देखेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता क्या है। मीन्स वेरिएशन दैट इज ब्रॉट इन द क्रोमोजोम्स। आपका अगर कोई सेट है, पहले तो समझिए, अगर आपका सेट है 2n, मीन्स आपका हर क्रोमोजोम डबल के फॉर्म में है, हर क्रोमोजोम। मीन्स अगर आप ऑर्गेनिज्म है 2n इज इक्वल टू 46, मीन्स आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 है और आपका एक सेट है 23। ये एक सेट का मतलब हुआ कि ये कंप्लीट जब बने होंगे इन द फॉर्म ऑफ when you were formed, then the ovum of mother was containing this complete one set of chromosome and the sperm of father was containing this set of chromosome. Now come, this was the gamete of mother, this was the gamete of father, N and N. And when this established by fertilization, then 46 number of chromosome was established. But it is said that if the organism is the product of result of sexual reproduction, then it will not totally resemble his or her father। अगर कोई organism sexual reproduction का product है तो वो totally अपने mother या father से नहीं मिलता जुलता रहेगा। मीन्स उसके characters में variation आएंगे। मीन्स उसके अब ये कैरेक्टर किसके लिए, कैरेक्टर को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा कैरेक्टर कहाँ से डिटरमाइन होता है? ऑफ कोर्स क्रोमोजोम्स डिटरमाइन करते हैं। ओके, एंड दीज क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। मीन्स कहीं ना कहीं से ये जब बना होगा, सेट ऑफ क्रोमोजोम बना होगा, मिले होंगे, तो ये वेरीफाइड होगा, ये कुछ वेरिएशन शो करता हुआ रहेगा हूबहू अपने मदर, और हूबहू जो मदर सेल से बना होगा, जो ये सेट, ये गैमेट जो अपने मदर सेल से बना होगा, बिल्कुल उसकी तरह नहीं होगा, वो अपने मदर सेल से थोड़ा डिफरेंट होगा। तभी तो ये डिफरेंस आया। ये भी जो गैमेट, मेल गैमेट बना होगा, वो भी अपने मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से या स्पर्म मदर सेल से, इन द केस ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट होगा। तब इसमें वेरिएशन आया, क्योंकि वेरिएशन के लिए क्रोमोजोम्स, वेरिएशन इन कैरेक्टर्स के लिए क्रोमोजोम्स रेस्पॉन्सिबल है, एंड क्रोमोजोम्स आर केमिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। इट मीन्स कहीं ना कहीं से यहाँ वेरिएशन आया होगा। अब वेरिएशन का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है क्रोमोजोम्स के बारे में। जैसे कोई एक क्रोमोजोम है ऐसा, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। मीन्स ये सेट क्रोमोजोम, एक सेट क्रोमोजोम डबल, हर सेट जो है वो डबल के फॉर्म में रहेगा। मीन्स डबल, हर सेट ऑफ क्रोमोजोम, every set of chromosome will be formed in the duplex। means if we have 23, तो ऐसा pairing 23 pairs रहेंगे। okay, this one complete set will come from father and one complete set will come from mother। और इसके बाद अब ये जो गैमीट बनाना स्टार्ट करेगा तो जरूर एक सेट एक गैमीट में जाएगा और एक सेट दूसरे गैमीट में जाएगा। लेकिन हम यहाँ अगर ऐसे ही ये कंप्लीट सेट एक गैमीट में चला गया और ये एक सेट एक गैमीट में चला गया, तो देख रहे हो इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ और ये सेम क्रोमोजोम गैमीट में ही चला गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जैसे ये जब क्रोमोजोम डिवीजन के फेज में आता है, उसके पहले वो इंटरफेज में जाता है एंड क्रोमेटिड्स में बदल जाते हैं। तो क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसिस, जैसे ये
मम्मी और फादर का, मदर एंड फादर का ये सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, तो सेम क्रोमोजोम, यहाँ पे कंसेप्ट आएगा होमोलोगस क्रोमोजोम का। द क्रोमोजोम that consists or that determines the same gene that is from the mother chromosomes also, means ये क्रोमोजोम में भी वही जीन्स हैं जो कि मदर के इस क्रोमोजोम में है। जैसे इस क्रोमोजोम में आई कलर है, स्किन कलर है, हेयर टेक्सचर है, टेस्ट बर्ड है, नोज शेप है, आई शेप है, ये है। तो यहाँ भी आई कलर होगा, हेयर कलर होगा, टेस्ट बर्ड होगा, नोज शेप होगा, आई शेप होगा। तो द सेट ऑफ क्रोमोजोम दैट डिटरमाइंस द सेम जेनेटिक कैरेक्टर एंड वन कम फ्रॉम फादर एंड वन कम फ्रॉम मदर, देन दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोजोम। Homologous chromosome is a set of chromosome that has same genetic character, that has same genetic constitution, or that shows that determine the same trait of the organism, but one set come from father and one set come from mother। और जब आप और जेनेटिक्स 12th में जाएंगे तो ये ऑर्गेनिज्म वो कैरेक्टर शो करेगा, इस दोनों जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट का वो कैरेक्टर शो करेगा जो कि डोमिनेंट होगा। आई कलर ये मदर से भी आया, आई कलर फादर से भी आया, और कैरेक्टर वो ऑर्गेनिज्म वो शो करेगा जो कि डोमिनेंट होगा। तो हर कैरेक्टर का डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो दो सेट्स हैं हर कैरेक्टर का, एंड एक क्रोमोसोम में एक ही कैरेक्टर तो होता नहीं है, बहुत सारे जीन्स होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं इस पर। तो वो सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट हैज सिमिलर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एंड वन कम फ्रॉम फादर एंड वन कम फ्रॉम मदर, देन इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस में होती क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ओके, हो सकता है इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाए और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ से टूटकर इसमें आ जाए, इसका इसमें आ जाए, इसका इसमें आ जाए। अब जब ये दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देंगे तो ये भी अपनी ओरिजिनलिटी खो देगा, मीन्स इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा, इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा नहीं होगा। ट्रेड तो वही होगा लेकिन ट्रेड का कैरेक्टर जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, मदर का फादर में, फादर का मदर में, एंड इट विल गो फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जाएगा तो ये थोड़ा सा सारा फादर का है लेकिन थोड़ा कैरेक्टर मदर का कैरी किए हुए है, सो इट विल बी नॉट एग्जैक्टली एट द फादर। ये बिल्कुल फादर की तरह नहीं दिखेगा और ये बिल्कुल मदर सेट की तरह नहीं दिखेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे होता है और मियोसिस का कौन सा फेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए ये मैं बताऊंगी, जो कि वेरिएशन का एक कंप्लीट आपका स्टेप बाय स्टेप है जो कि हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में मियोसिस के प्रोसेस को बताया, प्रोसेस को नहीं, मियोसिस हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हाई इट टेक्स प्लेस, वेयर इट टेक्स प्लेस, and how meiosis is important and how the genetic variation is involved in the gamete formation and why meiosis is important also. In the next video I will tell about the process of meiosis. Okay.